हीरा भाई नवा भाई को स्वागत करो आवश्यक साइड से झड़प की आप आ जाओ। संजय भाई सत्तर भाई स्वागत करो। शिवजी भाई मनोनिया स्वागत कर गाबा भाई सामत भाई आशा फूल महाराज जैसन भाई आशा बढ़िया स्वागत कर फूल महाराज। हेलो जीव तो हाँ हुआ बपोर ऑर्डर में जाओ नहीं त्यार ऑर्डर हाँ पे कैमरो एक है ही लो या तो हाँ देखो कल सेट नहीं था बीजो नहीं ना यार वो मैं क्या वारो नहीं मैं क्या वारो क्या को न सेट करो दी तो दाना भाई आओ स्वागत करो। हाँ भले हाँ एले हेलो हेलो बपोरना सेट से કેટલા પાડો કેટલા ફોટા મંદિરના આપણા પૂજારી અને બધાના વયોવૃદ્ધ એવા નંદુભા બાપાને વિનંતી કે તે ઊભા થશે જગ્યાએથી અને દાદાના હસ્તે તેમનું સ્વાગત થશે। આપણે જે જ્યોત યાત્રા છે એનો એક ભેટ રૂપે પ્રતિક રૂપે રામદેવજી મહારાજની છબી અને લેજ દાદાને અર્પણ કરશે અને સાથે સાથે જેના માટે આપણો કાર્યક્રમ થયો છે જ્યોત માટે રણુદાથી જે જ્યોત આવેલી છે એ જ્યોતમાં દાદા આનંદજી દાદાને અર્પણ કરશે। બોલો રામદેવજી મહારાજ की जय। बोलो रामा बोलो डाली भाई माता की खूब खूब आभार दादा। હવે કાર્યક્રમને અનુરૂપ બે શબ્દ આપણા જે આયોજન સમિતિ છે એમના એક સભ્ય દિનેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ગુલાભાઈ સ્વાગત કરવા આવશે દાદાને આવીએ ગોવિંદભાઈ। ગોવિંદભાઈ આવો સ્વાગત કરવા દાદાનો। અર્જુનભાઈ ગંગાભાઈ આવશે સ્વાગત કરવા દાદાનો। ઝડપથી આવતા જશે બધા। अजय जगुभाई आपसे स्वागत करवा। रामजी भाई कुमार पण आपसे नागरનો स्वागत करवा। केंगा बाबा आपसे स्वागत करवा।
मीराबाई આવશે આ બાપભાઈ દાદાનું સ્વાગત કરો કાર્યક્રમના આપણે શરૂઆત કરીએ દિનેશભાઈને વિનંતી કરું કે પ્રસંગને અનુરૂપ બે શબ્દો કહે દિનેશભાઈ થોડી આપણે બધાએ શાંતિ રાખીશું બોલો રામદેવજી મહારાજની અલગ આજે અહીંયા જ્યારે પ્રવાસમાં આવ્યા ત્યારે ધ્યાનમાં આવ્યું હતું કે 55-56 વર્ષ થયા એ વખતે અખંડ જ્યોત અહીંયા આવી હતી એના પછીનો આપણને આ પહેલો લાભ આપણને મળે છે એટલે આપણે બધા સૌ કિસ્મતવાળા છીએ થોડી વાર માટે બધા બેસી જઈશું થોડી વાર માટે બેસી અવાજ નહીં કરી આપણે કાર્યક્રમનો હેતુ છે એટલે થોડી વાર બેસી જઈશું બધા પોતપોતાની જગ્યાએ પછી દાદા દર્શન કરીશું રામદેવજી મહારાજના વંશજ પરમ વંદનીય આનંદસિંહજી બાપુ રામદેવરાથી આપણા વચ્ચે આ પવિત્ર અખંડ જ્યોત લઈને આવ્યા છે દરેક જ્યોતનો કાંક ને કાંક હેતુ હોય છે એટલે તે પવિત્ર જ્યોત આપણા આ રામદેવજી મંદિરમાં પ્રજ્વલિત થાય અને સતત એ જ્યોત જળતી રહે એવી બાપુની પણ ઈચ્છા છે અને આપ સૌ દ્વારા પણ આવી વ્યવસ્થા થાય એટલે આપણે ચિંતા કરીશું હવે ઘણી વાર એમ થાય કે આ બધા કાર્યક્રમો કરવાની જરૂર શું છે એ ત્યાંથી અહીંયા આવી તો એના વિશે હું થોડી વાત કરીશ આપણી સનાતન પરંપરામાં આપણે શું વાહકો છીએ અને આપણે જોઈએ છીએ કે હજારો યુગો વર્ષોથી કોઈને કોઈ અવતાર આ પૃથ્વી પર જન્મ લેતો હોય છે દરેક અવતારનું કાંક ને કાંક મહત્વ હોય છે કૃષ્ણ અવતારનું પણ એક મહત્વ છે રામ અવતારનું પણ મહત્વ છે એવી જ રીતે રામદેવજી મહારાજના જીવનનું પણ એક મહત્વ હતું જેના કારણે કોકણની ધરતી પર એમણે જન્મ લીધો એ વખતે જે સમાજની અંદર જે વ્યવસ્થાઓ બની હતી ઊંચ નીચના ભેદો ચરમ આસમાને પૂજા સનાતન એક જ પંથને માનવાવાળા લોકો એના વચ્ચે અંતર થઈ ગયા હતા એ જ વખતે ભગવાન રામદેવજીએ કોકણની અંદર જન્મ લીધો અને જન્મ પછી એમના ત્યાં જે કાર્ય આવ્યું એ કાર્ય કરવા માટે પ્રથમ કામ કર્યું ડાલીબાઈને બહેન બનાવ્યા એક સામાજિક સમરસતાનો સૌથી મોટો સંદેશ રામદેવજી મહારાજે આપણને આપ્યો છે તો આ જીવન ચરિત્ર લોકગાથામાં ખાલી વાતોમાં ન રહી જાય અને લોકો સાચા અર્થમાં રામદેવજી મહારાજનું આ જીવન ચરિત્ર પોતાના જીવનમાં ઉતારે એનો આપણને આ યાત્રાઓ નીકળી છે ખબર છે કે દરેક અવતારો કાંઈક ને કાંઈક આપણને શીખ આપી ગયા છે કૃષ્ણ ભગવાને જન્મ લીધો અને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં એમને ગીતા આપી અને ભગવાને એ વખતે પણ કીધું હતું યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય સંભવામિ યુગે યુગે એટલે યુગે યુગમાં જ્યારે મૂર્તિઓ આપણા ધર્મ સનાતનની અંદર આવતી હોય છે ત્યારે આવા અંશાવતારો જન્મ લઈ અને સમાજને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપતા હોય છે સમાજ ઉપર જ્યારે આપત્તિ આવે છે ત્યારે એ મદદરૂપ થતા હોય છે તો જે રીતે સામાજિક હિન્દુ સમાજ અંદરોદર જાત ભેદભાવ અને ટૂંકતો જતો હતો એ વખતે રામદેવજી મહારાજે આવી અને સમાજને એકરૂપ કરવાનું કામ કર્યું છે આપણે પણ આ એનો જે મૂળ જીવનનો સંદેશ છે એ ઉતારીએ અને આપણા વચ્ચે જે સમાજની અંદર જે ભેદભાવ થઈ ગયા છે એ ભેદભાવને દૂર કરી અને રામદેવજી મહારાજને ફરીથી આપણે સાચા અર્થમાં જાગૃત કરીએ જય બાબેજી આપણે જેમની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે એવા રામદેવજી વંશજ આનંદસિંહજી દાદાને આપણે વિનંતી કરીએ કે તેઓ આપણે એટલે આપણું ગામ આપણું ઘર આપણો વિસ્તાર સુખી થાય એવા આશીર્વાદ આપે.
बोली रामदेव जी महाराज की, डाली बाई की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की। आज बाबा रामदेव जी मंदिर खंडेराई गांव के प्रांगण में श्री रामदेवरा अखंड ज्योत यात्रा का ने खूब भाव भरा अभिनंदन किया और हम सब आपके इस अभिवादन स्वागत के लिए आभारी हैं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रत्नाल तालुका सामाजिक समरसता गतिविधि मंडली का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भव्य ज्योत यात्रा का आयोजन किया और आपके गांव में यह आयोजन सफल हो सकता है। इसलिए उस मंडली का भी मैं खूब हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ज्योत हमारे लिए जिंदगी में अहम बात होती है, पीढ़ियों से चलती है। हमारे सनातन में धर्म में ज्योति स्वरूप भगवान होता है, इसलिए नया काम सिखाने हम नहीं आए लोग, लेकिन हम सबकी आस्था, हमारी जो धार्मिक भावना है वो रणुजा से जुड़ी हुई है सबकी। इसलिए ये मंदिर बाबा रामदेव जी का है, ये उसकी शाखा है। तो सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि रणुजा से इन मंदिरों को आपस में जोड़ा जाए। तो इसी कड़ी के अंदर ये कार्य पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, जहाँ जहाँ बाबा के मंदिर है भक्त हर घर जो, उसी कड़ी के अंदर आज आपके गांव के अंदर आए हैं। इस गांव मंदिर के अंदर यह अखंड ज्योत रहेगी। हम तो आप सब रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन ये सदियों तक ज्योत अखंड चली रहेगी और आज का दिन इतिहास का दिन है। तो आप सब और हम सब इतिहास के साक्षी हैं। इसी तरह माताओं बहनों से अनुरोध है कि घर में सुबह या शाम जब भी आप पूजा करो तो दीवा जरूर लगाना, चाहे 10 मिनट लगाओ लेकिन दीवा लगाना। और ज्योत यहाँ से एक बार ले जाना मंदिर से, फिर बाद में रोजाना अखंड की जरूरत नहीं, सुबह शाम जब भी करो आप पूजा पाठ। तो ज्योत करने का, जिसके घर में ज्योत होती है उसके घर में कभी किसी चीज का अभाव नहीं होता, अन्न धन भंडार भरा रहता है और परिवार के अंदर सुख शांति रहती है। आने वाले हमारी पीढ़ी है उसके अंदर भी हमारे सनातनी संस्कार इसी तरह बने रहेंगे। इसके लिए हमको धर्म की शरण लेनी पड़ती है और धर्म की शरण के लिए आप सब हम प्रयास कर रहे हैं। कोई भगवान खुद नहीं आएंगे, हम सभी समाज है वो भगवान का ही रूप है। इसलिए इसी तरह से भाईचारा बना रहे और आप रणुजा हो तो जरूर मिलना। मैं खूब धन्यवाद देता हूँ। बोल रामदेव जी महाराज की। ખંડેરાઈ ગામમાંથી આપણે આનંદસિંહ દાદાનો હાર્દિક આભાર માનીએ અને ખંડેરાઈ ગામની રજા લઈ અને વતને આવે થોડું આપણે રતન તરફ પ્રસ્થાન કરાવીએ। જેને દર્શન કરવાની ઈચ્છા હોય તો ખૂબ ઝડપથી આવશે, કેમ કે હજી અમારે 7 ગામ બીજા પણ બહાર જવાના છે। બોલો રામદેવજી મહારાજ। जी
अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी तारो भरोसो भारी अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी भाग्य बड़ा जन भगवंत मरिया भाग्य बड़ा जन ए भगवंत मरिया रामा कुंवर ने जाधारी अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी मांजारी ना बच्चा उगारा बलती अगनी माई रे ओ जी ओ मांजारी ना बच्चा उगारा बलती अगनी माई रे ओ जी भक्त प्रहलादनी प्रतिमा पाली रामा भक्त प्रहलादनी प्रतिमा पाली मारो हरणा कंसराई अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी कौरव पांडवनु भारत रचियू एमा व्याता मुरारी रे ओ जी कौरव पांडवनु भारत रचियू एमा व्याता मुरारी रे ओ जी टिटोड़ी ना इंडा उगारा रामा टिटोड़ी ना ए इंडा उगारा प्रगट परचो भारी अजमलरा तारो भरोसो मने भारी रे ओ जी तारो भरोसो भारी अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी गिरधारी बनी ने गोकुल वसार्यूं गोप बनी गायो चारी रे ओ जी गिरधारी बनी ने गोकुल वसार्यूं गोप बनी गायो चारी रे ओ जी पाताले पे शिकारी नागने नाचो पाताले पेशी काली नागने नाचो संकट दीधारे विदारी अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ
उतारो रे ओ जी गिरी गोवर्धन कर्माधारो इंद्रनो मद उतारो रे ओ जी वसुदेव देवकीनु दुख टाळवा वसुदेव देवकीनु दुख ज टाळवा मामा कंस ने मारो यजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी ओ तारो भरोसो भारी यजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी गजराज जारे हुआ पियासा चाला सरोवर माई रे ओ जी गजराज जारे हुआ पियासा चाला सरोवर माई रे ओ जी जलमा जई वाले जुड़ने मारो जलमा जई वाले ए जुड़ने मारो उगारो छे गजराई अजमलरा तारो भरोसो भारी रे ओ जी सेना भगतना संकट टाळा आपे बन्या हरि नाई रे ओ जी सेना भगतना संकट टाळा आपे बन्या हरि नाई रे ओ जी बोली रामदेव जी महाराज की डालीबाई की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की। आज रत्नाल गांव के पवित्र भूमि पर हमारे श्री रामदेवरा अखंड ज्योत यात्रा जो निकली है उसी सभी संघ का आपने बड़े ही हृदय पूर्वक जो अभिनंदन किया उससे हम सबका हृदय गदगद हो गया। उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रत्नाल तालुका सामाजिक समरसता टोली ने जो इस ज्योत यात्रा का भव्य आयोजन किया है उस टोली का भी मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूँ। और बाकी तो सब आपको 2 महीने से प्रचार हो रहा है। और ये ज्योत है तो ज्योत के लिए कोई नया काम समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हमारे सनातन धर्म की हजारों सालों की परंपरा है तो सब ज्योत करते हैं। फिर भी हमारी आस्था बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई है और बाबा रामदेव जी के दरबार में कोई छोटा मोटा नहीं है। आज से 650 वर्ष पहले घोर सामंती युग था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये कह दे कि नहीं ये छोटा मोटा नहीं है। उस समय रामदेव जी ने ये बात कही थी जो आज हमारे जीवन में हम देख रहे हैं। फर्क पड़ा ना? तो ये उस समय की है, यानी वो समय से आगे चलते हैं महापुरुष। उसी परंपरा को हम सब आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ये जो अखंड ज्योत है, ये जो बाबा रामदेव जी ने जब समाधि ली थी, पर्दे हुए थे,
उस दिन से रामदेवरा जो रणुजा बोलते हो आप लोग, वहां जल रही है अखंड ज्योत। 650 वर्ष हो गए। उस ज्योत से ये ज्योत लाई गई है। और हमारा एक अभियान चलता है, हर घर ज्योत। उसी अभियान से प्रेरित हो गए ये रत्नाल के आप ही सभी भक्तों ने पूरी तहसील के अंदर जो अलग जगाई है, ये उसी की कड़ी में है। और ये जो ज्योत आई है आपके मंदिर के अंदर अखंड रूप से जलेगी और पीढ़ियों पीढ़ियों जलेगी। इस इतिहास की कड़ी में आप और हम सब गवाह हैं। अब अखंड ज्योत घर के अंदर जलाना शक्य नहीं है, तो पूरा गांव का सामूहिक तौर से एक मंदिर के अंदर ज्योत स्थापित हो जाएगी। फिर उस ज्योत से माताओं बहनों अपने घर के अंदर लेके जाना। अखंड ज्योत घर पे करना नहीं है, एक बार दीवा लगा देना, फिर बाबा से अरदास करना कि सुबह शाम जब भी आपकी अनुकूलता हो तो आप जब भी पूजा पाठ करो तो दीवा जलाना। ज्योति स्वरूप भगवान है। आजकल हमारे भौतिक के तो क्या है, अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती के अंदर बांस होता है, तुम्हारे वांस बोलते हैं ना, हमारे आदिवासी भाई वांसड़ा बोलते हैं, वाहड़ा ये होता है। तो अपने शास्त्र में सनातन धर्म में वाहड़ा जलाना बहुत वर्जित है, मना है। तो जहां तक हो सके आप अगरबत्ती का उपयोग कम करें और 10 मिनट जलाएं, लेकिन ज्योत जलाना। ज्योत जलेगी तो आपके परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार आएगा, बच्चे अनुशासित होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, घर में सुख शांति भाईचारा बना रहेगा। आपके घर के अंदर अगर सुख शांति है तो पड़ोसी के भी होगा, पड़ोसी से होगा तो पूरा गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो पूरा समाज और देश सुधरेगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व की बात होगी। कहते हैं ना भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु तो अभी भी है ही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने विभिन्न प्रकार की जो संस्कृतियां है विश्व की, उनका अनुसरण करना शुरू कर दिया है। हम हमारे पूर्वजों ने क्या रास्ता दिखाया उसको भूल गए। विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, टीवी है, विभिन्न प्रकार के ये जो साहित्य है, इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है वो धीरे धीरे क्षीण होती गई। क्योंकि हमारे जो हम पूर्वज जो हम घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को धर्म के रास्ते सिखाएं। अब 25 दिसंबर भाइयों को तो पता होगा, बहनों को नहीं हुआ, तो क्रिश्चियनों का एक क्रिसमस डे आता है। तो आजकल चलन हो गया, वो सांता क्लॉज लाल टोपी वैसा टोपी पहना के करते हैं। अब रत्नाल की बड़ी खुशी की बात है कि ये सांता क्लॉज नहीं बनाए, रामदेव वीरन बनाया है। ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अरे कौन सांता क्लॉज, कौन क्या, हमारा उससे क्या वास्ता, क्या करने आता है, वो ठीक है, उनकी संस्कृति, उनके लिए हम मना नहीं करते, लेकिन हम दूसरे के किसी को बाप बनाए, उससे तो हमारे खुद के बाप है, हमारे देवी देवता है, हमारे ऋषि मुनि है। धनी मातम की वाणी 1000 साल हो गया ना, आज भी उसकी कोई काट नहीं है। कबीरदास जी की आज भी उसकी वाणी की काट नहीं है, रोहिदास की कोई काट नहीं है। क्या उनके सनातन परंपरा से जो विचार गए वो काल जी की बात होती है। इसलिए हमारी मानसिकता होगी कि विदेश वाले कहेंगे हाँ ये बात सही है, तब मानते हैं। ये मानसिकता नहीं। हमारी संस्कृति के प्रति हमारा आदर हो। संस्कृति पर आदर कब होगा? हम धर्म पे चलेंगे। धर्म पे चलने से हमारी बुद्धि विकसित होगी। बुद्धि विकसित होगी तो हमारा इधर इधर का ध्यान जाएगा कि पास पड़ोस क्या है, हम क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। इसलिए ये जोत कोई रामदेवरा से या कहीं से भी ला सकते हो, अपनी एक ही चीज है। लेकिन विभिन्न प्रकार के आयोजन उत्सव और अनुष्ठान करते हैं तो लोगों में एक भावना जागृत होती है। ये भावना जागरण करने के लिए आपने समैया किया, रथ बनाया, ये ताकि लोगों के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़े। ऐसा करना पड़ता है जब लोगों में भावना जागृत होती है, और वो जोत हमारे अंदर जोत जलती है तब होगा। इसलिए आप सबसे विनती है, घर पे बहनों जोत जरूर जलाना और घर पे दीवा जलाना, घर में सुख शांति रहे। बाबा से मैं यही अरदास करता हूँ कि रत्नाल गांव बना रहे और रत्नाल गांव
एक आपको बताऊं कि ये जो काम है ये रतनाल से शुरू हुआ है और ये जो कार्यक्रम है पूरे देश में जा रहा है सोशल मीडिया के तरीके से। ये बहुत ही बड़ा उदाहरण है ये देश के अंदर और महीना 15 दिन बाद में देखना ये कितना जोर पकड़ेगा। भाग्यशाली आप हो और आप कर्मठ योगी हो, धर्म प्रेमी, जिन्होंने ये अलग जगाई है। बाकी ठीक है, जो चलती है छोटे मोटे रोड पे चलती है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है याद रखना 2-3 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर छाएगा, क्योंकि इससे प्रेरणा मिलेगी लोगों को। और आपके तो सब साथी है ही। हमारे 2011 के अंदर देवजी भाई बच्चन, रतलाम में पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे को पहचानते हैं, मेरी बातचीत होती रही। देवजी बच्चन, दिनेश भाई गज्जर, 2011 नवंबर में एक सीमा चेतना यात्रा निकली थी नारायण सरोवर से पूगल राजस्थान खाजूवाला तक। तो देवजी भाई, भीमजी भाई वाघेला, दिनेश भाई गज्जर और बहुत सारे हम साथ में थे। वो एक ब्रिंडियर वेलजी भाई मारवाड़ा मतलब देव हो गए, लेकिन उन्होंने जो बीज बोया था वो ये उसी का सेकंड भाग है। कितनी भावना जगी। तो ऐसे ऐसे करके धार्मिक आयोजनों से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती रहे। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपने स्वागत किया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। बोलिए रामदेव जी महाराज की जय। आरती માટે તૈયાર કરજો। હવે ધાળો છે ન કણંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો એ ધણી રે મેં તો ધારો છે ન કણંગી નાથ રે આ અમરથ કોઈનો અરે દાદા અમરથ કોઈનો આવે નહીં એ તો બાર રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળા
આ રામદેવજી મહારાજની જ્યોત આપણે ઘરે ઘરે પહોંચાડીએ અને એક સમાજમાં સમરસ સમાજ ભારતની અંદર ભ્રમણા કરીને હિન્દુ ધર્મનો સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે અને આ શુભ ઘડી આજે આપણને મળી છે, આપણા બધાના અહોભાગ્ય છે. હવે સમય વધારે ન લેતા તો હવે અહીંયા રાખો, અહીંયા આગળ અહીંયા રાખો, આગળ ના રાખો, આગળ તો થોડો સાઈડમાં લઈ લો ને. આનંદસિંહજી પાછળ લઈ જાઓ, પાછળ લઈ જાઓ થોડું. તો આનંદસિંહજીનું સ્વાગત કરવા માટે હું આપણા ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા ત્રિકમભાઈ સરપંચને વિનંતી કરું છું કે આનંદસિંહજીનું સ્વાગત કરે. ઉપસ્થિત કચ્છ જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ પારુલબેન કારા, સનાતન આજે આપણી વચ્ચે જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ પારુલબેન કારા ઉપસ્થિત છે. તો સરિયાબેનને વિનંતી કરું છું, આવો પારુલબેનનું સ્વાગત કરે. સરપંચ શ્રી સરિયાબેન. બાહુબળી અમે સાથે લડ્યા. ભગુભાઈ બસરુ પપ્પાનું સ્વાગત કરો. આપણા ગામના રામદેવ પીરના પૂજારી એવા શ્રી પ્રવીણગીરી હાજરના પૂજારીને વિનંતી કરું સ્વાગત માટે. ભીખા ભગત આગળ આવો. ભીખા ભગત બાકી આપણા બધા ગામના જ છે તો ફટાફટ ગામના લોકોને સ્વાગતની વિધિ બતાવશું. રણછોડભાઈનો તાલુકા પંચાયત સભ્યનું સ્વાગત કરવા માટે વિનંતી કરું નંદલાલ વેપારીને. જીવા શેઠનું સ્વાગત કરવા માટે હું વિનંતી કરું છું કાનજી બીજલ માતા. હવે અહીં સમય બહુ થઈ ગયો છે, કોઈનું નામ રહી ગયો હોય તો માફ કરશો. હવે જેની આપણે આતુરતાથી રાહ જોતા હતા મશરૂફ પણ ઈચ્છા છે કે દાદાનું સ્વાગત કરે. વિશે લખુભાઈ રાત દિવસ કામ કરે છે એવા આનંદસિંહજીને વિનંતી કરું એમની વાણીનો લાભ આપે. આનંદસિંહજી. बोलिए रामदेव जी महाराज की, डाली बाई की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की. आज ठाकुर जी के मंदिर के प्रांगण में कच्छ के माने हुए गोकलियो गांव रतनाल, उसके अंदर आज मेरा पहला आना हुआ. वैसे तो मेरे जान पहचान वाले कई भक्त हैं, लेकिन आपने जो हमारा इतना भव्य स्वागत किया उसके लिए मैं हमारी जो मंडली है, ये यात्रा संघ है, उनकी तरफ से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. और मैं आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रतनाल तालुका के समरसता गतिविधि मंडली का, जिन्होंने इतना भव्य और व्यवस्थित कार्यक्रम आयोजित करके ये धर्म को, सनातन धर्म को जागृत करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया आयोजन, अनुष्ठान या उत्सव कुछ भी कैसे किया. तो ये सब कर्मयोगी, धर्मयोगी सभी धन्यवाद के पात्र है. बाबा रामदेव जी ने आज से 650 वर्ष पहले सामाजिक समरसता का जो पाठ पढ़ाया था, आज भी वो चालू है. सामाजिक समरसता का अर्थ समाज में कोई छोटा मोटा नहीं, कोई भागला नहीं, कोई ये फलाना दरबार फलाना, ये नहीं. तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी अच्छा काम करने के लिए खुद के घर से करना पड़ता है.
जब दूसरा कहेगा मैं तो नहीं करूंगा और दूसरा के तू, ऐसे नहीं होता। तो बाबा रामदेव जी ने समरसता कैसे की? सबसे पहले डाली भाई, आज से 650 वर्ष पहले, अभी से 50 वर्ष पहले भी हालत खराब थी, अभी तो बहुत सारा सामाजिक समरसता हो गई है। 650 वर्ष पहले घोर ऐसा युग था कि बहुत ऐसी चीजें थी जो समाज के लिए घातक थी, और उसी का परिणाम हमारे समाज ने भुगता, हिंदू समाज ने। तो डाली भाई परिचय के कोई मोहताज नहीं है, सबको पता है। उनका रामदेव जी के साथ में भक्ति, घर पे आना जाना था। दूसरा रत्ना राई का, ऐसे तो बहुत पात्र है, लेकिन मैं आपको 2-4 गिनाता हूं कि भाई समरसता कैसे होती है। रामदेव जी ने घर से की है। रत्ना राई का एक बात अपने को पता है कि पूगलगढ़ से सुगना बाई को तेड़वा गया, लाने गया ना। बाकी तो घर पे तो काम तो करता ही होगा ना, अपने पास तो वो कथा है नहीं। लेकिन बहन बेटी को भेजने के लिए, लाने के लिए कोई गैर मर्द गैर जाति को भेजता है क्या कोई? लेकिन वो रबारी कितना सही और कितना चरित्रवान था कि उसकी नियत पे कोई खोट नहीं कर सकता। तो आज राइका समाज, रबारी समाज जितना रामदेव जी को मानता है उतना शायद कोई नहीं है। और आज भी हमारा तोमरा का, राणुजा का तो इनका बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर कच्छ के अंदर जो रबारी राइका समाज है हमारे जैसलमेर से आए हुए हैं, शायद इनको पता नहीं हो। जैसलमेर के हैं, राजस्थान के भी नहीं, जैसलमेर के, रणुजा के आसपास के। तो फिर दर्जी घोड़ी उड़ायो, तो दर्जी को थोड़ा टेंट वो करता था, तो उसको थोड़ा ठोक पीट के थोड़ा ठीक किया, क्या भाई चोरी मत कर, समाज के अंदर गलत संदेश जावे। लखी बंजारा, उसने टैक्स चोरी की नियत थी, तो उसके लिए यह बताया कि भाई टैक्स चोरी नहीं करी, चोरी करेगा तो टैक्स की करो चाहे किसी के घर की करो, तेरा आत्मबल गिरेगा, तेरा धंधा खराब होगा, समाज के अंदर गलत संदेश जाएगा। तो ये लखी बंजारे को संदेश नहीं है, हम सबको है। अब कहते हैं कि भाई टैक्स चोरी है तो सरकार की चोरी, सरकार कौन है? हम ही तो सरकार है ना, हमारा ही तो पैसा जा रहा है ना। चोरी करेंगे तो दूसरे का हक मारेंगे। तो ये आर्थिक समझ थी बाबा रामदेव जी की, तो उसको ठीक किया। ऐसी बहुत सारी जातियां थी उस समय, अभी भी है ही वो जातियां। तो उन सब को यहाँ मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा, और जो 24 फरमान सुने सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। तो रामदेव जी ने समरसता शुरू की। हमारे आस्था का केंद्र बाबा रामदेव जी है। अभी आपको कोई कहेगा अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद 350 किलोमीटर है, रणुजा यहाँ से 700 किलोमीटर है। रणुजा दिमागी तौर से आपको दूर नहीं लगता, अहमदाबाद दूर लगता है। होता है कि नहीं होता है? रणुजा तक ये रहा। तो ये हमारी भावनात्मक संबंध है, और उस भावनात्मक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले दायित्व बनता है हम बाबा के परिवार का, फिर उसके पीछे चलेंगे सब। तो हमने जितने बाबा रामदेव जी के मंदिर है उसके अंदर एक अभियान चलाया, हर घर जोत। अब हर घर में जोत तो रणुजा से पहुंचाना तो संभव नहीं है, तो फिर क्या है कि मंदिर के अंदर अखंड जोत पहुंचे, तो वो सब पूरा का हर घर आ गया। अब उसके अंदर से अपने घर पे जो भगत ले जाएंगे। तो इसी प्रकार से मेरे पास फोन आया कांजी भाई का कि बापू आप जोत का कर रहे हो, तो हम भी रत्नाल में करते हैं। भी अच्छी बात है, धर्म का काम है, और धर्म के अंदर जो सहयोग करता है, तो काम तो मेरे घर का नहीं, तुम्हारे घर का नहीं है, करो। तो आज उसका एक तत्कालिक किया, पहले कोई योजना नहीं थी, लेकिन किसी के अंदर जो होती है ना धर्म के प्रति जो चिंगारी है वो उछलती है ना, तो फिर बड़ी आग बनती है। और आज उसका विस्तार रूप आप देख लीजिए। कांजी भाई अकेले नहीं है, मैंने नाम बहुत सारे ऐसे है। सीमा चेतना यात्रा निकली 2011, मैं पूरा यह बॉर्डर से लेके साथ में था। हमारे दिनेश भाई गजार, देवजी भाई वरचंद रतलाल के है ना, ये कांजी भाई और बहुत सारे मेरे साथ में थे। उस टाइम भी बहुत धर्म का प्रचार जो सीमा के ऊपर हमारे लिए बहुत ही सामाजिक नुकसान का काम है, उसके अंदर
सनातन धर्म का प्रवाह हुआ और उसी का ये दूसरी कड़ी है। ये बहुत भव्य स्वागत भव्य कार्यक्रम हुआ और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये कार्यक्रम पूरे देश में जाएगा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड हूं और 25 साल से ये काम कर रहा हूं। जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर है बाबा के, उनका संगठन बना रखा है, इसलिए यहां से जो भी मैसेज जा रहा है उसमें भी जा रहा है पूरा। तो किसी को न किसी को तो प्रेरणा मिलेगी। इसलिए ये ज्योत यात्रा है और इस ज्योत यात्रा का कदर ये रखना, क्योंकि एक मैं बात बताऊं कि कार्यकर्ता बिना कोई काम होता नहीं है। रुपया कितना ही लगा लो, कार्यकर्ता बिना काम नहीं होता। और यहाँ रत्नाल के अंदर हमारे कार्यकर्ता है मंदिर के रामदेवरा के, और शायद वो नहीं जानते, वो सोच रहे इनको पता नहीं है। 2009 से 12 साल हो गए एक पैदल संघ जाता है, 2009 से बहना रत्नाल से रणु जाता है, तो वो तो हमारे कार्यकर्ता ही हुए ना। तो उन लोगों ने कितना भव्य कार्यक्रम किया और इसको कड़ी को आगे भी बढ़ाना। हम तो इतना संभव नहीं है, वैसे तो मैं कच्छ में आता रहता हूं, फिर भी इस काम को आगे बढ़ाना और समरसता, यानी कोई अबड़ चेटनी छुआछूत वैसे तो है नहीं, मुझे पता है रत्नाल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो भगवान का द्वारा है। गोकुल या कृष्ण तो पहले थे, रामदेव जी बाद में बन के आए, तो ऐसा है नहीं। फिर भी हमने हमारी आने वाली पीढ़ी को ये चीज संस्कार देने, धर्म के प्रति चलेगा तो उसके अंदर भक्ति से क्या मिलता? अभय दान। अभय का मतलब किसी से भय नहीं। अब दूसरे ने किसी ने कह दिया ये तो चोर है, तो अपन भी कह दिया हाँ चोर है, तो अपना मगज लगाओ ना, चोर कब किसकी चोरी करी, कि चोरी तो नहीं करी, तो फिर कैसे हुआ? इसलिए इसको बोलते हैं मानसिक पिछड़ापन। भक्ति से दिमाग जागरूक होता है और भक्त हमेशा अपने साधारण आदमी तो उससे आगे चलता है, और आगे चलता है उसको पागल कहते हैं। रामदेव जी को भी बोला ही होगा ना, उस समय सभी संतों के साथ होता है। तो समय से आगे चलने के लिए, भविष्य की बात जानने के लिए, समाज के अंदर विकास करने के लिए कुछ भक्त होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं, और ये अभी आपके सामने है। ज्यादा बात मैं नहीं कहूंगा, बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि पूजा पाठ आप करती हो, क्योंकि भाई तो मैं भी ऐसे ही यहाँ बैठा, पूजा पाठ कौन कर रहा है, तो उसको करना ही पड़ता है ना। तो आप जब भी घर पे पूजा पाठ करो तो अगरबत्ती कम से कम काम लेना। अगरबत्ती के अंदर वांस होता है, वांसड़ो बोलते हो क्या, वाहड़ा, वो जलाना हमारे शास्त्रों में, हिंदू धर्म में वर्जित है, मना है। तो घर के अंदर ऐसा काम नहीं करने का। 10 मिनट भी जलाओ, लेकिन बत्ती जलाने का, दीवा सुबह चलाओ, चाहे जब भी आप पूजा पाठ करो एक बत्ती लगाओ, और घर में जोत है। जिसके घर में जोत होगी उसके घर में सुख समृद्धि अन्न धन भंडार भरा रहेगा। उसके बच्चे कभी भी बिगड़ेंगे नहीं, धर्म की है। उसके पप्पा फाइल लेके वकील के दफ्तर में नहीं जाएगा, डॉक्टर के नहीं जाएगा, है। तो इसलिए ये चीज अपने को चला के रखनी है। कोई बड़ा महात्मा कहीं से अवतरण होकर तुम्हारे को गांव को सुधारेगा, ऐसा दिमाग से निकाल देना। भगवान हमारे अंदर ही प्रविष्ट होता है, किसी के उसने नई दिशा दे दी। इसलिए हम ही हमारे परिवार को आगे बढ़ाएं, ये हमारा काम है। ये जोत उसका प्रतीक है। जोत मंदिर में जलेगी, लेकिन हमारे घर के अंदर, ये मंदिर है जो हमारा घर है, शरीर के अंदर जोत जलेगी जब ये देश का वर्ल्ड में नाम होगा। वैसे तो है ही नाम। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं रत्नाल के 2009 से मंडल आ रहा, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये कड़ी आगे से आगे चलते रहना, पीढ़ियों तक चलती रहेगी। बोली रामदेव जी महाराज की जय। એક નાનકડું જ કાર્યક્રમ બાકી છે। જે રામદેવરાથી જે જ્યોત આવી છે એ જ્યોત આપણા રામદેવ પીર મંદિરના મહાન પૂજારી શ્રી પ્રવીણગીરીને આનંદજી ટોયરજી સોંપશે। તો આવો પેલા હાર અને છબી લ્યો, પેલા છબી છબીને
રણુજાથી આવેલો નેજો ફેરો છે. રણુજાથી આવેલો નેજો છે સાથમે. રણુજાથી બાબા રામદેવના મંદિરેથી જે ચડેલો નેજો છે એ નેજો છે. રામદેવ પીરનો છબી અર્પણ કરી રહ્યા છે. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી, બોલો સત્ય સનાતન ધર્મ કી, ભારત માતા કી, બોલો રામદેવજી મહારાજ કી. આ જ્યોત રામદેવ પીર મંદિરે અખંડ રહેશે. આપણે જ્યારે શ્રદ્ધાવે ત્યારે ત્યાંથી પ્રગટાવને આપણા ઘરે લવવાવું હંગીએ. અને આ જ્યોત 650 વર્ષથી જે પ્રગટેલી જ્યોત છે એ જ્યોત છે. તો બધાને આપણા માટે ખૂબ આનંદની ઘડી છે. હવે દર વર્ષે રણુજા પદયાત્રી સંઘ લઈને સ્વખર્ચે જાય છે એવા નંદલાલ વેપારીનો ફૂલહાર અને છબીથી દાદા સ્વાગત કરશે. નંદલાલ વેપારી આગળ આવે. હારલ્યું. બોલો રામદેવજી મહારાજ કી. હવે યાદીનો રે નાતો રે નમો રે નથી નાથજી. એ ખૂટલ અમારો, આ ખૂટલ અમારો ખોટો કરે છે ખેદ રે ધરી રે. મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે. આ અમરથ કોઈનો આવે નહીં એ તમાર રે ધરી રે. મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધરી રે. મેં તો હવે મળી છે નિશાની રે યારા માતાના નામની. એ દીદી દીદી મળી છે નિશાની રે યારા માતાના નામની. લાગી રે એમાં, લાગી રે એમાં સુરતાય ખંડ એક તાર રે ધણી રે. મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે. મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે. આ અવરથ કોઈનું આવે નહીં એ તમાર રે ધણી રે. મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે. મેં તો
જોયું એ હવે તે જોયું નજર કરીને પ્રણામ રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો હવે અલખના યજવાળે રે આનંદ ગણો યુરમાં એ અલખના યજવાળે રે આનંદ ગણો યુરમાં એ વારે તે વારે અરે દર વારે તે વારે શું કરું વાલમની વાત રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો હવે દાસ રે બળદેવ કહે દિલડું નથી ડોલતું હવે દાસ રે બળદેવ કહે દિલડું નથી ડોલતું એ ધણી રે તારો અરે દર ધણી રે તારો ઓ ધણી રે તારો નક્કી થયું છે નામ રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે આ અવરત કોઈનો આવે નહીં એતબાર રે ધણી રે મેં તો ધારો નકળંગી નાથ રે ધણી રે મેં તો અજમલ ઘેર અવતારી વાલો ભાગે મનની ભીડ જય હો રામદેવ પીર જય હો રામદેવ પીર રામદેવ પીર જય હો રામદેવ પીર અજમલ ઘેર અવતારી વાલો અજમલ ઘેર અવતારી વાલો ભાગે મનની ભીડ જય હો રામદેવ પીર જય હો રામદેવ પીર જય હો રામદેવ પીર જય હો રામદેવ પીર દઈ અજમલજીને ધી દઈ અજમલજીને ધી દ્વારકામાં પ્રભુજી તમે દર્શન દીધા દઈ અજમલજીને ધી દઈ અજમલજીને ધી વચન પાળવા પિતા પુત્ર થઈ વચન પાળવા પિતા પુત્ર થઈ ધર્યું મનુષ્ય શરીર જય હો રામ
होकराण गढ़ माही कुमकुम पगले प्रगटा पीर दी होकराण गढ़ माही होकराण गढ़ माही मात पिता ना मन हर खाना मात पिता ना मन हर खाना सखियू मंगल गाय सखियू मंगल गाय जय हो रामदेव पीर जय हो रामदेव पीर जय हो रामदेव पीर जय हो रामदेव पीर खर्चा पुराय परमपार बहु नामिने वाला दर्शन भारी खर्चा पुराय परमपार खर्चा पुराय परमपार